See here, plastic limit you should not in negative always. It cannot be never negative. Also, in sometimes see sand is there. तो sand का plastic limit आप you cannot find. प्लास्टिक कहाँ प्लास्टिसिटी रहता ही नहीं उसमें, क्ले में प्लास्टिसिटी रहता. क्ले को आप रोल कर सकते, तो सैंड को रोल करके सैंड को आप हाथ में मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते. सैंड को आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपके हाथ से निकल जाता. तो सैंड इज अ टाइप ऑफ अ सॉइल वेयर प्लास्टिक लिमिट यू कैन नॉट फाइंड. So there the plasticity index is reported as 0 and it is non-plastic. Suppose sometimes if you get the plastic limit more than the liquid limit, so please don't write negative answer. So that should be taken as 0 only. So a plasticity index can never be negative. Always it is positive, or if it is non-plastic, it is 0. तो एक बार और बताता हूँ. देखिए मैं, what is plasticity index? Plasticity index is the measure of plasticity of soil. It is the range of water content at which the soil exhibits plasticity characteristics. Suppose if it has a soil has high plasticity, we say that it is tending towards clay, and if it has low plasticity, then we can say it has silt. We say it has silt. And suppose if it is 0, means it is neither silt nor clay. And plasticity index is denoted by IP, and its formula is WL minus WP. That is the difference between liquid limit and plastic limit. So plasticity index equal to the difference between the liquid limit and plastic limit. So IP is equal to WL minus W. Clear the things, and then some chart I have given you, and it cannot be negative always. It cannot be negative at any time. Okay. If you have any doubts regarding plasticity index or shrinkage ratio, volumetric shrinkage or shrinkage limit, you can ask. So Atterberg indices we are studying. ये अलग-अलग indices है. इसमें से हम पहला index पढ़े, that is plasticity index. Plasticity index, and it is noted by IP. It is noted by IP. Now we shall go for next index, that is liquidity index. Second is liquidity index. It is noted by IL. प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखो महेश, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कुछ नहीं है. प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? मतलब वो सॉइल में कितना प्लास्टिक है, प्लास्टिसिटी कितना है, समझ रहे आप? वो फाइंड आउट करने का जो रेंज रहता ना, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स. और ये कहां से कहां तक रहता? आप ग्राफ देखो, मैं जो आपको शुरू में ग्राफ दिया हूं, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो सॉइल प्लास्टिक सॉइल है ना, वो रेंज है. तो इसीलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला
liquid limit minus plastic limit. It is given by the formula liquid limit minus plastic limit. और अगर से हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो वो सॉइल क्ले की तरफ बढ़ रहा, और लो है तो वो सिल्ट की तरफ बढ़ रहा. हाँ, वो सिल्ट है, और हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो वो क्ले है. अगर से जीरो है तो इट इज कॉल्ड नॉन प्लास्टिक. इट इज कॉल्ड नॉन प्लास्टिक. मैं आपको एक ग्राफ दिया ना, वहां लिक्विड लिमिट देखो कहाँ है और प्लास्टिक लिमिट कहाँ है. देखो उसमें बीच में जो सॉइल है ना, वो रेंज जो है ना वाटर कंटेंट का, इट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स. Therefore, it is given by WL minus WP. WL minus WP. Now you write, next one is liquidity index. Next is liquidity index. So liquidity index is denoted by IL. Liquidity index is denoted by IL, whereas plasticity index was denoted by IP. So liquidity index is IL. The liquidity index is used for scaling the natural water content of a soil sample to the limits. तो लिक्विडिटी इंडेक्स से क्या मालूम होता, मालूम है आपको? लिक्विडिटी इंडेक्स से वाटर कंटेंट का रेंज मालूम होता. सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट नेचुरल वाटर कंटेंट से कितना है वो रेंज मालूम कर सकते हैं हम. Therefore, it is defined as the, जैसा प्लास्टिसिटी इंडेक्स में क्या मालूम कर सकते हैं, रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी. तो यहाँ पर रेंज ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर कंटेंट के साथ वाटर कंटेंट का रेंज जो रहता वो निकालते हैं. Therefore, it is the ratio expressed as a, it is the ratio expressed as a percentage between the natural water content of a soil minus its plastic limit. तो किसी भी सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो IL, द लिक्विडिटी इंडेक्स, प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द प्रेजेंट स्टेट. तो प्रेजेंट में नेचुरल वाटर कंटेंट का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करने के लिए, सो IL इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP. WP मींस इट इज, क्या है WP? प्लास्टिक लिमिट. IP means plasticity index. So ratio of W minus WP divided by IP is called IL. Is called IL. IL is nothing but liquidity index. तो फॉर्मूला याद रखो और लिख लो. IL is equal to W minus WP by IP. W minus WP by IP. Okay. Okay. Now this is the formula and liquidity index कितना आता है उसके ऊपर से हम क्लासिफाई सॉइल को करें. तो देखो लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहा तो वो लिक्विड है. देखिए जैसा प्लास्टिसिटी में आप प्लास्टिसिटी मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर एक कितना लिक्विड है, कितना मतलब बह सकता, वो मालूम करते हैं हम लिक्विडिटी इंडेक्स से. समझ में आ रहा है आपको? प्लास्टिसिटी इंडेक्स में क्या मालूम करते हैं आप? प्लास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं. प्लास्टिसिटी इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, जबकि लिक्विडिटी इंडेक्स में उसका लिक्विडिटी कितना है, मतलब वो कितना बहता है या कितना सॉलिड है, वो मालूम कर सकते हैं. लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहा, लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 रहा तो इट इज कॉल्ड लिक्विड. 0.75 और 1 के बीच में रहा तो इट इज कॉल्ड वेरी सॉफ्ट. मतलब और 0.5 से 0.75 के बीच में रहा इट इज कॉल्ड सॉफ्ट. इट इज कॉल्ड सॉफ्ट. 0.25 से 0.5 के बीच में रहा इट इज कॉल्ड मीडियम स्टिफ. और 0 से 0.25 रहा इट इज कॉल्ड स्टिफ. और लेस देन 0 रहा इट इज कॉल्ड सेमी सॉलिड. Is called semi-solid. So this is the formula for liquid index. This is the table of liquid index. और याद रखो जैसा हम प्लास्टिक इंडेक्स में प्लास्टिसिटी मालूम करते उसी तरह लिक्विडिटी इंडेक्स में कितना उसका लिक्विडिटी है वो मालूम करते, मतलब कितना वो बहता वो मालूम करते. ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लो और ये टेबल लिख लो.
लिख लो प्लीज, 2 मिनट में लिख लो। कळलं काय? प्लास्टिसिटी इंडेक्स मध्ये काय होतं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मध्ये काय होतं, प्लास्टिसिटी किती आहे, ते रेंज किती आहे, म्हणजे प्लास्टिक है सॉइलचा रेंज किती है। देखिए अब आपको बोलेंगे शक्कर है, शक्कर में मिठास का रेंज क्या है, बहुत मीठा है, बहुत फीका है। वैसा ही सॉइल कितना प्लास्टिक है, कितना लिक्विड है। समझ में आ रहा है आपको? ये इंडेक्स से क्या मालूम होता है आपको, इंडेक्स से उसका रेंज मालूम होता है आपको। तो जैसा आपको बोला मैं कि कितना मिठास, इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, बोलते उसका आईक्यू बहुत है, आईक्यू आईक्यू बहुत है। आईक्यू मतलब क्या है भाई, वो कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसका, कितना इंटेलिजेंट है वो, उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आईक्यू कम है, डल है। तो उसी तरह प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, तो उसको उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम है, मींस प्लास्टिसिटी इज लेस। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह लिक्विडिटी इंडेक्स है, लिक्विडिटी इंडेक्स मतलब उसका लिक्विडिटी कितना है, कितना बह सकता हो, मतलब वो कैसा मालूम, वो सॉलिड है क्या लिक्विड है, तो वो हम मालूम कर सकते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स से। और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है IL इज इक्वल टू W, स्मॉल w, दैट इज वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट। जो प्रेजेंट सॉइल का आप लिक्विडिटी इंडेक्स निकाल रहे, दैट इज वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट, WP डिवाइड बाय IP, IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विड इंडेक्स और दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टिक इंडेक्स। दो फॉर्मूले याद रखो, ये टेबल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्लास्टिसिटी का और लिक्विडिटी का, इतना याद रखो। और एक और इंडेक्स है, दैट इज श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स इज डिनोटेड बाय IS, so it represents the semi solid state of consistency and it is given by WP minus WS। मतलब प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट से क्या मिलता, श्रिंकेज इंडेक्स मिलता। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड श्रिंकेज इंडेक्स, तीनों के फॉर्मूले याद रखो। श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला है WP माइनस WS, मतलब प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में जो सॉइल रहता, दैट इज श्रिंकेज इंडेक्स। मतलब वहां पर श्रिंकेज क्या है, मतलब कितना वॉल्यूम कम होता, कितना वॉल्यूम बढ़ता वाटर कंटेंट कम ज्यादा करने पे, दैट इज श्रिंकेज इंडेक्स। तो टेक डाउन दिस फॉर्मूला आल्सो। इतना आज रहने दो, और कुछ कल मैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद टफनेस इंडेक्स, एक दो और इंडेक्स है, फिर इसके प्रॉब्लम कराऊंगा। तो ये टॉपिक भी आपका खत्म होता। इधर वी विल शैल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, खत्म कर देंगे, या नहीं नहीं सर हमको अगला चैप्टर चाहिए तो अगले चैप्टर को जाएंगे, वो बाद में करेंगे, जैसा आपकी इच्छा। तो प्लीज whatever the things I taught today are very clear to you। ठीक है, तो लिख लो उतना। फिर आप जो चाहते, जो आपकी बहुत आपका फेवरेट है अटेंडेंस, उस अटेंडेंस को जाएंगे हम। खुश हो जाते अटेंडेंस मिलते, समझ में आया, उससे खुशी नहीं मिलती आपको। प्रेजेंट मिले तो खत्म, क्या दुनिया भर का पूरा दौलत मिले जैसा है आपको, काम का ना काज का अटेंडेंस हो। Okay, I will take the numbers. Vivek Masar, B26, B33 Gnaneshwar Raut, B27 Suraj Bhange, Syed Naveed Kazi 48, 21A Nazneen Mulani, 40 RV Kavde, 49 Mandar Misal, 55 Swapnil Kakade, Mayuri Sapkal 14B, Kiran Giri B49, B52 Shreyash, B1 Prapti, B23 Samarth Harwadkar, B25, B29 Soham, B31 Suraj, B54 Gaurav,
B57 भद्री, B64 जितेंद्र पाटिल, B34 सुमित, B67 स्वरूप, A36 पूनम, A14 मेघा, A22 स्नेहल राउत, A32 तान्या, A45 हर्षद, A65 आदित्य, A31 आरती, A19 देशमुख धनाश्री, 1 भोसले वैष्णवी, 2 प्रजक्ता काळे, प्रजक्ता रेगुलर रहो बेटा, और 2 के बाद तेजश्री लेंडवे आफ्टर अ लॉन्ग गैप। आई डोंट नो व्हाई तेजश्री और ये मोनाली एब्सेंट क्यों रहते हैं? हाँ, क्या आप खुद पढ़ लेते समझते क्या है? सर पढ़ाए सो मतलब का नहीं है क्या है? यू हैव टू बी रेगुलर बेटा। तेजश्री। 4 निशा माने, 7 श्रद्धा वांगड़े, 8 ऐश्वर्या अदतराव, 13 पूजा स्वामी, 16 आकांक्षा चौहान, 17 श्रद्धा चौहान, 18 स्नेहल, 20 प्रणाली, 24 शीतल ताटे, 26 देशमुख प्रियदर्शिनी। बहुत देशमुख दिख रहे क्लास में, चलो ठीक है। 27 मयूरी, और 29 स्नेहल, 34 प्रेरणा, 35 देशमुख दिव्या, 37 श्रद्धा सुरवसे। क्लास मध्ये एकही प्रॉब्लेम दाखवणार, यू शो युअर अटेंडन्स, क्लासला येतात पण मला कळणारच। 43 जन्मेजय, 44 हनुमंत जाधव, 51 गणेश बागल, 52 महेश, प्रीति शाइवळे 53, 54 निंबाळकर गणेश, 57 सत्यम शिंदे, 58 केदार, 64 सुशील खड़े, B10 ऐश्वर्या पाटिल, B13 ऐश्वर्या पुकाळे, B28 सौरभ, B2 शीतल बहिरवड़े, B3 प्रतिभा बिराजदार, B11 सोनाली पाटिल, B16 शाहीन शेख, के बाद सुरवा से प्रतीक्षा 19 के बाद 42 ऋत्विक इंगले, 53 आकाश नवले, 63 अमोल पवार, 8 प्रगति क्षीरसागर, 65 महेश साळुंके, 59 सादिक अली ए, 51 सौरभ गौड़ी, B6 वैष्णवी मनोज, B7 अंजलि कांबळे, B12 प्रियंका, B17 वृशाली, B46 निखिल, A4 निशा माने हो गया, निशा माने। ओके दैट्स ऑल। सुशील खड़े भी हो गया, 54 यस। ऐश्वर्या पाटिल, शाहीन शेख हो गया, आकाश नवले हो गया, प्रगतिशील सागर साळुंके, गौड़ी कांबळे, प्रियंका, निखिल यस, सबका हो गया। और भी कोई है तो चार्ट बॉक्स में आ जाओ, भर के गिरा चार्ट बॉक्स। B20 कपिल पाटिल जी आपको अटेंडेंस मिल गया 37, 24 B मिल गया हर्षवर्धन, खुश हो जाते। प्रज्योत 40, अटेंडेंस क्या करते पता नहीं, अटेंडेंस लेके पढ़ना नहीं लिखना नहीं। B23 कपिल पाटिल मिल गया, सुमित पवार आपको मिल गया ऑलरेडी 24,
Okay, Nandita, I have given you A38. Nandita, no problem. 40 मिल गया. Sumit Pawar 34. Vishali B17. B54. और कोई है नीचे. B5 Shivani. Okay, Shivani. B27 Suraj. Suraj, already I have given you. तुम्हारा नाम सबसे पहले आता डेली ऊपर. B34 given. Okay, कपिल पाटील, झालं काम. चला आता. बाय. Okay. So next class is I think lab. That there I will conduct one experiment on Monday. ठीक है. Have a nice day. Happy Independence Day. अब चलो, जिसका जिसका अटेंडेंस मिला, जिसका नहीं मिला तो आप अटेंडेंस दे दो, या जिसका हो गया वो लोग जा सकते. Happy Independence Day बेटा, everybody. Happy Independence Day. B39 निखिल कदम. ओके कदम, मिल गया आपको भी अटेंडेंस. निखिल कदम. ओके, गॉट इट. $64 जितेंद्र पाटील तुम्हाला अगोदरच भेटलंय की. भेटले ऑलरेडी. आय गिवन यू जितेंद्र. A48 हर्षल. ओके, A48 हर्षल मिल गया. Monali also came. I will give attendance. Don't worry, Monali. A68. Okay. A68. A5. मोनाली को भी अटेंडेंस मिल गया. और कौन है? 6 कोमल रोंगे. A6. Okay. You are present. 31. 31 is already given.
A15, of course. A15 also I am giving attendance. 19, 3, 5 Gilog, 18 Pratibha Birajdar. Monali and Tejasri, you send your numbers to me, please. Phone numbers. Okay, shall I stop now? Have a nice day. और कोई है तो देखो. B51 and B12. B50 both I have given. A19. A19 given beta. Deshmukh Dhanashree I have given you already. So this is my number I have given you 7975524752. So you people also give your numbers so that I can store, save them and can in contact with you people. Roll number 3. Okay, beta. 9284475 Okay, thank you.